नमस्कार, सुपरफास्ट अपडेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में रेप मर्डर की घटना पर डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों की पहचान की थी। इसके बाद उन्होंने ये बात साफ की कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी ने प्रवेश नहीं किया। That inside the cordon of area, there are many people who are standing, talking, and it is not clear that who are these people. We have been able to identify each and everybody who was there in this particular picture or who were present at this particular place. At no point in time could anybody enter in this particular area who was not authorized, or nobody entered who was not associated with the investigation process. We have seen that there is one particular news channel which has shown a video and some pictures of the seminar hall, which is the place of occurrence of this particular case. And there it has been seen that inside the cordon of area, there are many people who are standing, talking, and it is not clear that who are these people, and it has been alleged that they are probably some people who were not supposed to be there, and there has been some tampering of evidence. So we have taken some still from that video, and I would like to show you that picture, and we have been able to identify each and everybody who was there in this particular picture or who were present at this particular place. I hope you can see the cordon. Right behind the cordon is the dead body. The one in blue check here is OC Homicide from Kolkata Police. We have the videographer from the detective department. We have learned commissioner of police here. Additional CP1 sir is here. OC women remand cell is here. Lady officer from Tala PS is here. And forensic officials are also here. All are known to us and identified. There is also another picture and new set of people. We have the witness doctor, whom you can see has a stethoscope and is leaving soon after the inquest. We have FSL people, the fingerprint expert, the ACP of detective department, the videographer, senior officer additional CP1, and the forensic officials. So as you can see, this picture or the video that you may have seen, it basically is of a time when the inquest process was over. As you can see that the lady doctor is leaving this particular place. So at no point in time could anybody enter in this particular area who was not authorized, or nobody entered who was not associated with the investigation process. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं। उनका यानी कि हेमंत सोरेन भी असम में स्वागत है। आपत्ति क्या है? ये देश तो हमारा है। आप चंपई सोरेन के पीछे जासूसी क्यों करते हैं? पार्टी को सोचना चाहिए कि अभी भी वह लोगों यानी कि जेएमएम नेतृत्व के कितने जासूस लगे हुए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मंत्रालय के सभी लोगों के पीछे जासूस मैं भारत का नागरिक हूं। अभी तो विधानसभा में हेमंत सोरेन जी ने भी बताया कि हम असम जाऊंगा, असम का चुनाव का समय। अगर उनको भी असम में स्वागत है, आप बोल रहे जेएमएम बास का बीद है, तो अब चंपई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा? मेरा तो लगता है जेएमएम और कांग्रेस मिनिस्ट्री का लगभग सारे मंत्री और एमएलए का पीछे जासूस लगा हुआ है। मैं भारत का नागरिक हूं। अभी तो विधानसभा में हेमंत सोरेन जी ने भी बताया कि हम असम जाऊंगा, असम का चुनाव का समय। अगर उनको भी असम में स्वागत है, आपत्ति क्या है? ये देश तो हमारा है। तो एक बात है, आप बोल रहे जेएमएम बास का बीद है, तो अब चंपई सोरेन जी का पीछे आप जासूसी क्यों करवा रहा था? गुरुजी का फॉलोअर थे, गुरुजी का लेफ्टिनेंट थे। अगर आप अपना पिता का लेफ्टिनेंट का ऊपर आप जासूसी करवाएगा, क्या वो पार्टी बसेगा? मेरा मन है कि पार्टी को सोचना चाहिए कि अभी भी कितना लोगों का पीछे जासूस लगा हुआ है वो लोगों का।
मेरा तो लगता है जेएमएम और कांग्रेस मिनिस्ट्री का लगभग सारे मंत्री और एमएलए का पीछे जासूस लगा हुआ है। अभी बोल रहे हैं सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। अरे बिना हथियार भी सिक्योरिटी होते हैं, बिना हथियार सिक्योरिटी होते हैं। आप देखिए कैसा किया है, कलकत्ता में किया, फिर एक फ्लाइट में पीछे का सीट बुक किया, फिर दोनों बाप बेटा जो बोल रहा था वो सुन रहा था, जो भी बात कर रहा था, बाबूलाल जी और सम्फाई जी। फिर होटल में रुका और होटल में आपने रूम कौन सा लिया? सम्फाई सोरेन जी का नजदीक वाला रूम लिया और वो रूम में आप लोग दो थे। हमने ज्यादा तहकीकत नहीं किया, लेकिन आपने एक महिला को भी होटल में लेके आए थे। नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या मामले थे, लेकिन अगर वो भी झारखंड महिला पुलिस भी हो सकता है, पता नहीं है। ये तो सब इंक्वायरी का मामला है। आप अगर सिक्योरिटी ड्यूटी में थे तो आपको मिलने के लिए दोबारा महिला क्यों आते हैं? होटल का सीसीटीवी में फुटेज है। तो आपका क्या मनसा था अभी तो आपको ही बोलना पड़ेगा। चुनाव हो जाने का बाद आईजी प्रभात कुमार को हम जरूर पूछूंगा कि आपने ये काम किया। भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त संजीव कुमार पांडा ने कहा कि साइबर अपराध हर जगह बढ़ रहा है और ये हमारा फोकस क्षेत्र है। हमने भुवनेश्वर में अपने साइबर पुलिस स्टेशन को मजबूत किया। पिछले 7 महीनों में हमने लगभग 200 एफआईआर दर्ज की हैं और शिकायतकर्ताओं को कुल मिलाकर 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। समय पर कार्यवाही करते हुए हम लगभग 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को रोकने में सक्षम हुए हैं। हमने गुजरात और मध्य प्रदेश से लगभग 22 साइबर धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार भी किया। अभी जैसे साइबर क्राइम हर जगह बढ़ रहा है, इसलिए ये हमारे लिए फोकस एरिया है। एंड भुवनेश्वर में खास करके हम लोग अपना जो साइबर पुलिस स्टेशन उसको और स्ट्रेंथन किए हैं। तो इसमें लास्ट 7 महीना में हमारे पास करीब 200 एफआईआर हुआ है। उसमें करीब 45 करोड़ का जो नुकसान हुआ है लोगों को, उसमें से हम लोग जो टाइमली ब्लॉकिंग करके उसमें से करीब 11 करोड़ रुपए को ब्लॉक कर चुके हैं जो बैंक खाते में है। तो उसके बाद हमारा टीम बहुत सारे राज्यों में गया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। वहाँ से करीब टोटल हम लोग अभी तक 22 जो साइबर फ्रॉड लोगों को गिरफ्तार किए हैं, 9 लोगों को नोटिस दिए हैं। टोटल 1.37 करोड़ जो पैसा जो है हम लोग जो विक्टिम लोगों को वापस किए हैं कल। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगता है क्योंकि टीम को बाहर भेजना पड़ता है। तो हमारा टीम जो है काफ़ी मेहनत किए हैं इसमें। और अभी और 5 करोड़ जो है फ्रीज हुआ है, उसमें से 5 करोड़ और जो विक्टिम लोगों को देने का हमारा कार्रवाई जारी है। और 5 करोड़ रुपया हम लोग वापस करेंगे विक्टिम लोगों को। इसमें हमारा जो एक मेन ग्रुप हम लोग पकड़े थे, वो लोग मेनली जो डिजिटल अरेस्ट में काम करते हैं। डिजिटल अरेस्ट मतलब वो फ़ोन करते हैं कि आपके नाम पे कुछ मोबाइल नंबर पे या आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड यूज़ हुआ है, पार्सल सीज हुआ है, पार्सल में ड्रग है, तो आपके नाम पे केस हो गया है। फिर पुलिस बन के वो लोग वीडियो कॉल करते हैं, पुलिस ड्रेस पहने हुए होते हैं, पीछे पुलिस स्टेशन का लोगो भी दिखाते हैं, फर्जी एफआईआर दिखा देते हैं, फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाते हैं। तो लोग डर के मारे उनको पैसा देते हैं। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि कोई भी पुलिस बन के अगर आपको वीडियो कॉल में आपका अरेस्ट धमकी दे रहा है या पैसा मांग रहा है, वो 100% फेक है। तो क्योंकि कोई भी पुलिस आपको यहाँ अरेस्ट करने आने के लिए लोकल पुलिस का हेल्प लेगा, लोकल पुलिस के थ्रू करेगा। तो अगर उस टाइप का कोई वीडियो कॉल में आपको पुलिस बन के अगर धमका रहा है अरेस्ट के लिए, आप लोकल पुलिस को कॉन्टैक्ट करिए या हमारा 112 इमरजेंसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, पैसा मत दीजिए। दूसरा और एक केस जिसमें ज़्यादातर पैसा नुकसान हो रहा है वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। कोई लिंक डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं, ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। शुरू में वो 1000 देने में 1200 दे देते हैं एक दिन में, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, 5000 देने में 7000 दे देते हैं। जैसे जैसे आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है वो पैसा आप ज़्यादा डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा डाल देते हैं, फिर वो और नहीं देके पूरा पूरा पैसा ले जाते हैं। और हमारा जो जानकारी है
जितने लोग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में जो विक्टिम हुए हैं सारे काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, काफ़ी अच्छे पोजीशन पर भी हैं, तो सिर्फ ग्रेड के लिए वो अपना पैसा खो रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक को हमारा ये निवेदन रहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न है, तो गारंटेड और फ्रॉड होता है, तो उसमें आप पैसा मत लगाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं आ चुकी हैं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद किया, लेकिन उनमें से कई खराब हो गई, कुछ ढह गई। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का इतनी जल्दी गिरना उनका अनादर दिखाता है। इस कारण जनता का जीवन भी हमेशा खतरे में है। कोई जवाबदेही होनी चाहिए। केवल भाषण देने से या राजनीति करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। देखिए, वीर सभा आखिर इसमें क्या लेना देना है। हम जो कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री ने खुद किया, जो कोलैप्स हो गया या खराब हो गया, गिर गया। मतलब पुल तो इधर उधर टूट गए हैं। एयरपोर्ट के कैनोपी 2-3 बार गिरे हैं, 3 एयरपोर्ट में भी। पार्लियामेंट बिल्डिंग में लीक पड़ा, आपको मालूम था। हाईवेज पे बड़े बड़े क्रैक्स गिर रहे हैं। और अभी छत्रपति शिवाजी का जो ये तो बेइज्जती है कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा इतनी जल्दी गिर गई। तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। क्या सरकार बहुत सारी चीजें जल्दी में करके, उद्घाटन करके उसके लिए क्रेडिट लेके आगे जाना चाहते हैं? क्वालिटी नहीं देखते हैं कि किस किस्म के मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, किस किस्म के क्वालिटी का काम हो रहा है। ये नहीं करेंगे तो हमारे देश का बिल्कुल क्या इमेज लगेगा। और हमारे अगर जनता की जीवन का भी मतलब रिस्क में है इसके कारण। ये छोटी सी बात नहीं। क्या इस पे कोई भ्रष्टाचार था कि कोई जानबूझ के पैसे लेके कम पैसे खर्च करके ये चीजें बना दिए? ये सब तो सरकार को इनका कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ भाषण देने से या इसमें राजनीति खेलने में से कुछ फर्क नहीं होता। अच्छी तरह का काम हमारे देश में देखा। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जस्टिस हेमा कमेटी का खुलासा किया जाना चाहिए। कई अपराध किए गए हैं। राज्य सरकार ने अपराध करने वाले अपराधियों को छिपाकर और बचाकर अपराध किया है। मौजूदा सीपीआई यानी कि एम विधायक मुकेश पर आरोप है वह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि एलडीएफ के गठबंधन सहयोगी भी उन्हें हटाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर से विवादों में आ गया है, लेकिन इस बार जो कारण है वो बहुत बड़ा कारण है और पतंजलि पर लगने वाले आरोप वाकई गंभीर हैं। पतंजलि आयुर्वेद पर आरोप है कि वे जिस दिव्य दंत मंजन को एक शाकाहारी प्रोडक्ट के रूप में बेचते हैं वो वास्तव में शाकाहारी नहीं है। उसमें मछली का अर्क है जो प्रोडक्ट को मांसाहारी बना देता है। जी हां, इस आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कल रात वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों का औचक दौरा किया और क्षेत्र में बाढ़ के बीच नगर पालिका की विभिन्न टीमों द्वारा की गई सफाई और अन्य कार्यों का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों से बातचीत की और वडोदरा नगर निगम के कर्मचारियों के साथ बैठक की। असम विधानसभा ने नमाज के लिए 2 घंटे की ब्रेक पर रोक लगा दी है। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने एक्स पर पोस्ट के जरिए इस संबंध में जानकारी दी थी। असम में सच्ची धर्मनिरपेक्षता को पुनः प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर असम विधानसभा ने आज हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे के स्थगन की प्रथा को समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र में मंत्री और शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। सावंत ने कहा कि कैबिनेट की बैठकों के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के मंत्रियों के साथ बैठने पर उन्हें उल्टी आती है। महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन में फिर बवाल मच गया है। रमजान हो, ईद उल फित्र या फिर ईद उल अजहा, गाजा वालों की जिंदगी पर मौत का साया हर दम मंडराता रहा। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल ने कभी भी रियायत नहीं बरती। क्या औरतें, क्या बच्चे, हजारों हजार जाने गए। बताया जाता है कि अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीन जहां बक हो चुके हैं और 90,000 से ज्यादा जख्मी हैं। तो जिस इजराइल ने एक दिन से लेकर कुछ घंटों तक भी हमलों से समझौता नहीं किया, वो अब गाजा में 3 दिनों के सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। साथ ही हमास के लोगों ने भी इस सीज फायर के लिए हामी भर दी है, यानी हमास और इजराइल 3 दिनों तक एक दूसरे से जंग नहीं लड़ेंगे। इसकी वजह
ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसने गाजा में दस्तक दे दी है, और वो है छोटे छोटे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।